اللهم صل علی محمد و آل محمد. برائے خوشنودی مولود کعبہ بآواز بلندتر صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی رسول الکریم وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فلاحت اللہ بے شمار گرے فضا الہم بے شمار وغوث بے حقوق بے شمار. صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ازل سے بد تک ان دونوں کا محافظ نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد. برائے ظہور المنتقی میں ہونے حسین بآواز بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میری مولا کی عزادار ماں بہنوں، ہمارے غم ہماری خوشیاں سب اہل بیت سے وابستہ ہیں. بے شک ہمارے غم ہماری خوشیاں سب اہل بیت سے وابستہ ہیں. میں اپنے موضوع کا آغاز اس شعر سے کرنا چاہوں گی. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اسباب بندگی کے بنے اس سبب کے بعد، اسباب بندگی کے بنے اس سبب کے بعد، بنت اسد کی عزت و عظمت و ادب کے بعد. سبحان اللہ، واہ واہ واہ. اسباب بندگی کے بنے اس سبب کے بعد، بنت اسد کی عزت و عظمت و ادب بی کے بی کی بعد. عظمت پہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خلق خدا جھکے گی یقیناً میری طرف، بیت اللہ مطمئن ہوا تیرا رجب کے بعد. بے شک، واہ واہ. نعرہ حیدری. آج تیرا رجب ہے، مولا کائنات مولا علی کی آمد کا دن ہے. کئی صدیوں سے کعبے کو جس کا انتظار تھا وہ ہستی آ جائے. کئی صدیوں سے کعبے کو جس ہستی کا انتظار تھا آج وہ ہستی آ گئی. صلوات پڑھی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جناب فاطمہ بنت اسد آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی خانہ خدا کی سمت جا رہی ہیں. واہ واہ، سبحان اللہ. فاطمہ بنت اسد کا آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہوئی کعبے کی طرف جا رہی ہیں. دعا کے ارادے سے بڑھی ہیں. جیسی بی بی نے دیوار کعبہ کو ہاتھ لگایا، دیوار کعبہ شک ہو گئی اور مولا کائنات کی مادر بے درخت خانہ کعبہ کے اندر داخل سبحان اللہ. نعرہ حیدری. مولا کی عظمت پہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہاں میں اپنی سننے والی ماں بہنوں کو بتاتی چلوں کہ جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو مریم نے دل میں ارادہ کیا کہ یہ بچہ بحکم خدا ہے اور نبی ہے تو قبلہ اول میں اس کی ولادت ہونی چاہیے. یہ بحکم خدا ہے اور نبی ہے، اس کی ولادت قبلہ اول میں ہونی چاہیے، لیکن ان کو بھی اس چیز کی اجازت نہیں ملی. جیسے بی بی نے دیوار کعبہ کو ہاتھ لگایا، دیوار کعبہ شک ہو گئی اور مولا کائنات کی مادر جو ہے دروازے سے اندر چلی گئی. صلوات پڑھی. لیکن بی بی مریم کو اس چیز کی اجازت نہیں. بے شک یہ مقام ہے، یہ فضیلت ہے. بی بی مریم کو اجازت کیوں نہیں ملی؟ تاکہ پتہ چل سکے فرق کیا ہے عیسیٰ میں اور علی میں. تاکہ زمانے کو پتہ چل سکے کہ کیا فضیلت ہے مولا علی کی. وہ جس کی آمد کے لیے کعبہ خود کو کھول دے اس کو علی کہتے ہیں. چمن چمن کلی کلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 جدھر جدھر ہوا چلی علی 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 علی. نعرہ حیدری حیدری. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جناب فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر تشریف لے گئیں جہاں مولا کائنات نے ظہور پایا. جہاں مولا کائنات نے ظہور پایا. شیخ مفید فرماتے ہیں کہ امیر المومنین کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر بروز جمعہ 13 رجب عام الفیل کو ہوئی. عام الفیل اس دن کو کہا جاتا ہے جب ابرہہ نے ہاتھوں کے لشکر کے ساتھ کعبے پر حملہ کیا.
काबे पर हमला किया था। इस वाक़े को 30 साल हो चुके थे। इसके आपके अलावा ना कोई मौला अली से पहले काबे में आए और ना ही बाद में आए। यानी ये शर्फ, ये मंजिलत, ये फजीलत सिर्फ मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब की जात को हासिल है। रसूल अकरम आमुल फील के तकरीबन 1 साल बाद ज़हूर पजीर हुए और आपका विसाल आमुल फील के 63 साल बाद हुआ। तो यूं आपकी हयात तय्यबा 63 साल हुई। जब मौला अली दीना में तशरीफ लाए तो आपकी हयात तय्यबा 30 साल के लगभग थी। तो आपकी हयात तय्यबा 30 साल के लगभग थी। आप रसूल हुदा को जब आपकी चची के बारे में लोगों ने बताया कि वो काबे के अंदर चली गई है और दीवारें काबा बंद हो गई है, ताला भी नहीं खुल रहा, ए अपने अब्दुल्ला खबर लीजिए, तो आप मुस्कुरा कर काबे की जानिब चल दिए, क्योंकि आप जानते थे कि अली दुनिया में तशरीफ ला चुकी है। क्योंकि आप जानते थे मौला अली दुनिया में तशरीफ ला चुकी हैं। सलवात पढ़े। जो लोग ये समझते हैं कि अब 40 साल की उम्र में रिसालत पर फाइज हुए, उनसे हमारी कोई बहस नहीं। जो लोग ये समझते हैं कि अब 40 साल बाद रिसालत पर फाइज हुए, उनसे तो हमारी कोई बहस ही नहीं, क्योंकि ये हर इंसान का अपना अपना अकीदा है। वो तो असल से भी पहले है, वो अबद के बाद भी रहेंगे। असल से पहले से है, अबद के बाद तक रहेंगे। ये हर इंसान का अपना ज़र्फ है और अपनी मारिफत है। जिसका जितना ज़र्फ होता है उसकी उतनी ही मारिफत होती है। मौला कहती है मुझसे सिर्फ मारिफत ना मांगो, पहले ज़र्फ मांगो, क्योंकि जिसका जितना ज़र्फ होता है उसको उसके मुताबिक मारिफत है। जैसे ही मेरे आका दरे काबा के पास पहुंचे और कुफल को हाथ लगाया तो कुफल खुद बहुद खुलकर आपके कदमों में गिर गया। आप अंदर तशरीफ ले गए तो आपकी चची ने कहा, बेटा मोहम्मद, पता नहीं क्या वजह है, जब से तेरा भाई दुनिया में आया है ना आंखें खोलता है, ना हाथ उठा रहा है और ना ही दूध पी रहा है। तवज्जो रखिएगा, ये बहुत अहम बात करने लगी हूँ मैं। ना आंखें खोलता है ना दूध पीता है। सवाल पढ़े। मेरे आका मुस्कुराए और मौला अली को अपने हाथों में उठाया और कहा, ऐ अली, मेरी चची मेरी माँ कह रही है कि जब से अली आया है ना आंखें खोल रहा है, ना हाथ उठा रहा है, ना दूध पी रहा है। तो मेरे मौला अली ने आंखें खोलकर सबसे पहले मेरे रसूल का दीदार किया और कहा, या रसूलल्लाह, मैं दुनिया में आपका दीदार करने आया, यहाँ हर सिमत बुत ही बुत है, आंखें कैसे खोलता, और मैंने तो रिसालत का रस चूसना है, मैंने शीर मादर पीना है। तो मेरे आका सबसे पहले अपनी जुबान मौला अली के मुंह में डाली। मौला अली ने रिसालत की जुबान से इल्म में रिसालत जोश फरमाया, रसूल खुदा का दीदार किया। फिर रसूल खुदा ने फरमाया, या अली कुछ सुनाओ। रसूल खुदा ने फरमाया, या अली कुछ सुनाओ। सलवात पढ़े। तो मौला अली ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, फरमाइए, तुरैश सुनाओ, अंजील सुनाओ, या वो कुरान सुनाओ जो भी नाजिल ही नहीं हुआ। पे बुलंद तर सलावत अल्लामा इरफान हैदराबादी फरमाते हैं, ये जुमले उनके हैं, उनकी रूह के इसाले सवाब के लिए आपकी समातों के ज़ेरे नजर करना चाहूंगी कि जब रसूल हुदा वलीउल्लाह को लेने बैतुल्लाह में गए, जब रसूल हुदा वलीउल्लाह को लेने बैतुल्लाह में गए तो दरवाजे से नहीं बल्कि उसी शिगाफ के पास गए खड़े हुए और दीवारें काबा फिर से खुली और आप अंदर से तशरीफ ले गए। अब जो लोग रसूल खुदा को 40 साल के बाद रिसालत पर फाइज देखते हैं, मेरा उनसे सवाल है कि आपके अकीदे के मुताबिक रसूल 40 बरस की उम्र में नबी हुए और फिर आगाज वही हुआ, तो फिर ये 30 साल की उम्र में किसके कहने पर अली को लेने गए और ताला दीवार खुद बहुत खुल गया। नारा हैदरी, अज़मत मलूद काबा, मुवद्दत बरी बुलंद तर सलावत। ऐ फातिमा बिन्ते असद, देखो इसकी खिदमत में कोई कमी ना आ पाए। ऐ फातिमा बिन्ते असद, इसकी खिदमत में कोई कमी ना आए। अल्लाह तुम्हें इसकी खिदमत के सिले में अपने घर से एक ऐसा ही बेटा अता फरमाएगा। मैं तुम्हें आज से 30 साल बाद उसके आने वाले बेटे की बशारत देता हूँ। मेरी माँ बहनों, अभी कुरान तो नाजिल ही नहीं हुआ, तो मौला अली के बाबा को ये कुरान के लफ्ज किसने सिखा दिए? मौला अली के बाबा को कुरान के ये लफ्ज किसने सिखा दिए? शाहिदू व मुबश्शिरू, ये तो कुरान की सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 45 के अल्फाज, ये तो कुरान की सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 45 के अल्फाज है। सलवात पढ़े। अभी तो रसूल का 55 है, अभी तो ऐलान नबूवत होना है, अभी तो कुरान नाजिल होना है।
अभी तो ऐलान नबूवत होना है, अभी तो कुरान नाजिल होना है, फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह सी का खुतबा जो आपने रसूल के निकाह में पढ़ा था, ये अबू तालिब को निफास का इल्म कैसे हुआ? अभी भी लोग सोचते हैं कि अबू तालिब का ईमान क्या है। बेशुमार अभी भी लोग को कहते हैं कि सरकार अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। बेशुमार अभी भी लोगों को सरकार अबू तालिब के ईमान पर शक है। सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। वो इतने ही जरीउल कदर साहिबे जिनके ईमान पर आपकी किताबें पढ़ी पड़ी हैं, वो सब के सब खामोश हैं, वो सब के सब खामोश। और मौला अली के बाबा का तो ईमान ही तस्लीम नहीं करते। कुल्ले ईमान का बाबा है वो। उसके कहे हुए अल्फाज कुरान में आ गए। सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली ये अला है मेरे मौला अली के बाबा की शान। ये है मेरे मौला अली के बाबा की शान कि जिनके कहे हुए अल्फाज कुरान में आ गए। बेशक कलहम से उसे कहते हैं अबू तालिब जिसकी जुबान से अल्फाज अदा हो और कुरान में आते। बेशक उन्हें अबू तालिब कहते हैं। अभी भी जमाना सोचता है कि अबू तालिब कौन है। बेशुमार अभी भी जमाना सोचता है कि सरकार अबू तालिब का ईमान क्या है। बेशुमार पता नहीं उन्होंने कलमा पढ़ा था या नहीं वो पढ़ा बेशुमार। था। अभी भी जमाने को अबू तालिब के ईमान की कोई दलील चाहिए कि जिसका जिक्र खुदा कुरान में कर रहा है, जिसके ईमान की गवाहियां खुदा कुरान में दे रहा है। अभी भी जमाना ये सोचता है कि उसका ईमान क्या है। सरकार अबू तालिब के साथ पे बवाज़े बुलंद तर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बरज़मते निगहबानी रिसालत बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। तारीख में कहीं भी ये बात नहीं लिखी हुई कि जब आपकी ज़ौज मुहतरमा बीबी फातिमा बिन्ते सद काबे में तशरीफ ले गई, काबे में तन्हा तशरीफ ले गई और 3 रोज तक वापस ना आई, तो आपने कहीं ओस पड़ोस या रिश्तेदारों के घर तलाश किया हो। कोई ज़ईफ़ से ज़ईफ़ रवायत भी ये नहीं कहती। कोई ज़ईफ़ से ज़ईफ़ रिवायत भी आप उठाकर देख लेना तो उसमें आपको ये नहीं मिलेगा कि सरकार अबू तालिब ने बीबी को तलाश किया हो कि बीबी कहाँ गई, क्योंकि सरकार अबू तालिब जानते थे कि मौला अली का ज़हूर होना है, बीबी काबे में गई है। सरकार अबू तालिब जानते थे क्योंकि मशीयत है ना। ये क्या फजीलत होगी सरकार अबू तालिब की जो मौला अली के भी वालिद हैं, जो मौला अली के भी वालिद हैं। वो जानते थे कि बीबी काबे में है, उन्हें पता था। लोग जाते थे काबे के पास, पूछते थे, लेकिन जमाने को पता नहीं था कि अली आ रहे हैं। जमाने की अपनी ओवर थिंकिंग थी, लेकिन जमाने को ये नहीं पता था कि काबे में मलूदे काबा आ रही हैं। सलवात पढ़े। तो फिर ये तस्लीम करना पड़ेगा कि आप जानते थे कि आज मेरा फर्जंद रसूल का वसी अल्लाह के घर आ रहा है, अल्लाह के घर आ रहा है। किताब ज़िक्र अली और हसाइल अली में ये वाक़या दर्ज है कि आप रसूल खुदा अपने भाई को लेने काबे में गए तो बहुत सारे लोग भी थे। जब रिसालत इमामत को अपने हाथों पर उठाए हुए बाहर जलवा गर हुई तो अरब के लोगों में एक रस्म बड़े अरसे से चली आ रही थी। अरब के लोगों में एक रस्म बड़े अरसे से चली आ रही थी। वो रस्म ये थी कि मक्का के पहाड़ों में एक बहुत बड़ा अरसा था। ये लोग पैदा होने वाले बच्चे को अरसा के बल के सामने रख देते थे। वो अरसा जिस बच्चे को खा लेता लोग इसे नाजायज औलाद समझ लेते, उसकी माँ को जलील करते बल्कि उसे सजा देते। ये उनकी रिवायत थी। वो हर बच्चे को इस तरह से करते होते थे। तो आपने अपने भाई अली को रासा के सामने रख दिया। जैसे ही रासा ने मुंह खोला तो मेरे मौला अली ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से उस रासा के मुंह में हाथ डालकर उस रासा को चीर कर रख दिया। ये वाक़या अरब के जाहिल सरदारों ने देखा तो रसूल खुदा से कहने लगे, ऐ मोहम्मद, इस बच्चे ने तो वालिद का मेयार बताने वाला रासा ही खत्म कर दिया। ऐ रसूल, इसने तो वालिद का मेयार बताने वाला अरासा ही खत्म कर दिया। यानी कि वो आगे से आने वाली लसन को किस तरह से पता करेंगे कि ये बच्चा सही है या नहीं, नारा है सही है या नहीं है। तो आप मुस्कुराते हुए फरमाए, अली, मेरे भाई अली की मोहब्बत और मेरे भाई अली का बुग़्ज़ जो है इस चीज की दलील होगी। जो मेरे भाई अली से मोहब्बत करेगा वो हलाली होगा और जो मेरे भाई अली से बुग़्ज़ रखेगा वो हरामी होगा। सवाल पढ़े। ये अरासा एक जानवर था। जब भूख लगती तो वो बच्चे को खा जाता था और जब भूख नहीं लगती थी तो वो हरामी ही क्यों न छोड़ देता था, यानी वो उस बच्चे को छोड़ देता था। यानी उसको जब भूख लगती थी तो वो जो उसके सामने बच्चा होता था उसे खा लेता था और जब उसे भूख नहीं लगी होती थी और उसे छोड़ देता था। और वो लोग समझते थे कि अगर इसने इसे छोड़ दिया तो ये हलाली है, इसने इसे खा लिया तो ये हरामी है। मौला ने उसका जो है ये क्राइटेरिया तब का चेंज कर दिया। मौला ने उनका ये क्राइटेरिया चेंज कर दिया। ज़माने को बताया कि जो मेरी विलायत पे चलेगा वही हलाली होगा और जो मेरी विलायत से इनकार करेगा वही हरामी होगा। सवाल पढ़े।
तो मैं आज जश्न ज़ुहूर मौला अली के पुरमसरत मौके पर अपनी तमाम माँ बहनों को सलाम पेश करती हूँ कि जिनकी औलादे मौला कायनात के जानिसार में उन माओ की असमत और तहारत को सलाम पेश करती हूँ जिनकी औलादे मेरे मौला अली का जश्न मनाती हूँ। सुभान अल्लाह, जिनकी औलादे मेरे मौला अली का जश्न मनाती हैं, मौला अली की औलादों का जश्न और गम मनाती हैं। बोलो बोलो सखी सारिंदा